Good afternoon, students, again. Now, the next topic of electric potential and capacitance is polar dielectrics. What is polar? Polar molecules and dielectrics are those substances, those molecules whose positive and negative end do not coincide with each other. मीन्स जब उनके अंदर जो पॉजिटिव एंड है, पूरा पॉजिटिव चार्ज जहाँ अकोमुलेट है और जो नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट है वो आपस में कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया एक्स्ट्रा. और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में नेट डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है बिकॉज द डाइपोल मूवमेंट इज ड्यू टू द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज and it is due to the distance between them. Since the polar dielectrics are those substances whose positive and negative charge do not coincide, so they must possess some distance among them. So the polar dielectrics have net dipole moment. Dipole moment is denoted by symbol capital P. What are non-polar dielectrics? These are those dielectrics in which the positive as well as the negative end coincide with each other. Coincide means overlap with each other. For example, oxygen molecule, nitrogen molecule, hydrogen molecule, etc. In this non-polar dielectrics, the net dipole moment is always zero. Now the next topic is atomic polarizability. What is atomic polarizability? Atomic polarizability को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज याद रखनी पड़ेगी. Since we know that the dipole moment is directly proportional to electric field. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से. अब स्टूडेंट पूछेंगे डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? लेट अस कंसीडर अ डाइपोल which has two charges of same magnitude but opposite nature, जिनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी बट नेचर अपोजिट है, separated by a certain distance that is 2 times a. Since the electric field lines moves from positive end towards a negative end, that you already learned about these electric field lines in the properties of electric field lines. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के एंड तक. अगर वो मूव कर रही हैं तो दिस मींस डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर पाएंगी तभी डाइपोल मूवमेंट होगा. क्यों? अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता और यही नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव नहीं कर पाती, जहां से स्टार्ट होती वहीं पर टर्मिनेट कर जाती. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जहां मूव करती है वहीं पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एग्जिस्ट करेगी तो डाइपोल मूवमेंट भी वहां एग्जिस्ट करेगा. So dipole moment is directly proportional to electric field. What is E here? Electric field, not energy. Proportionality हटाएंगे तो हम कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, that is alpha epsilon naught into electric field. This whole term is a proportionality constant. This is your proportionality constant, and alpha is equals to E vector upon epsilon naught into E vector. What is now alpha here? This is known as atomic polarizability. Now what is atomic polarizability? It is the ratio of electric dipole moment to epsilon naught times the external applied electric field. अगर हम इसे लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या है? कितनी डाइपोल मूवमेंट आपके डाइपोल में आई है किसकी वजह से? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितनी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है. डेफिनेशन, now what is the definition of atomic polarizability? It is defined as the ratio of electric dipole moment 2 means divide epsilon naught times the external applied electric field.
अब बात आती है अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे. व्हाट इज पी? डाइपोल मोमेंट. एंड डाइपोल मोमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है q इंटू 2 टाइम्स a. व्हाट इज q? q इज द चार्ज. चार्ज यूनिट हैज कूलम. व्हाट इज 2 टाइम्स a? इट इज द डिस्टेंस. द डिस्टेंस इज इन मीटर. So the unit of dipole moment is coulomb meter. What is the unit of epsilon naught? Do you remember? If you forget, then apply the formula. F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Epsilon naught is equals to 1 upon 4 pi f q1 q2 by r square, which is equal to coulomb square upon Newton meter square. Q1 का भी कूलम आएगा, Q2 का भी कूलम आएगा. सो आई राइट हियर कूलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर. सो द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2. व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के हम यूनिट्स लिखेंगे. E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट. दैट यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. The electric field intensity is the ratio of electric force और coulombic force to the unit charge. तो यहां से अगर आप यूनिट्स डालेंगे, फोर्स के यूनिट न्यूटन, चार्ज के यूनिट कूलम्ब इनवर्स. सो वी कैन राइट ओवर हियर विच इज इक्वल्स टू कूलम्ब मीटर कूलम्ब माइनस 2. ये हम सभी न्यूमिनेटर में ले जाएंगे. न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स इंटू कूलम्ब. देन कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर coulomb minus 2 cancel out, Newton inverse cancel out. So alpha is equals to meter cube. So the units of atomic polarizability is meter cube. ये क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का पूछा गया है. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी? नाउ Now students, your next topic is polarization vector. It is denoted by the symbol just like P. तो आपको P में डाउट हो जाएगा. It is either polarization vector और electric dipole moment. So electric dipole moment के लिए आप simply P लिखें और उस पर वेक्टर ड्रॉ कर दें. पर polarization vector भी P से डिनोट होता है, तो आप P का सिंबल इस फॉर्मेट में लिखें. P आप इस फॉर्मेट में लिखें एंड उस पर वेक्टर ड्रॉ कर दें. अगर इस फॉर्मेट में आपको P दिख रहा है, दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर. और इस फॉर्मेट में अगर P है, that is your electric dipole moment. Now what is polarization vector? It is defined as the electric dipole moment in per unit volume. कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो भी वैल्यू है उसे डिवाइड करना है वॉल्यूम के साथ, जितना वॉल्यूम उसने ऑक्युपाई किया है. नाउ आई राइट ओवर हियर द फॉर्मूला. P, that is polarization vector, is equals to NP. What is P? Here P means electric dipole moment. What is N? The number of dipoles in per unit volume. उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उनका नंबर लिखना है. That is clear to you? Now the next topic is electric susceptibility. इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी की डेफिनेशन अंडरस्टूड करने के लिए आप इससे प्रीवियस डेफिनेशन पे अगर जाएं, that is atomic polarizability. From that we come to know that electric dipole moment is directly proportional to electric field. And now from this equation, that is your polarization vector is directly proportional to electric dipole moment. ये आपने एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के कंसेप्ट से लिया, ये पोलराइजेशन वेक्टर के कंसेप्ट से लिया. ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? पोलराइजेशन वेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है एंड पोलराइजेशन वेक्टर डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड है, तो दिस मीन्स पोलराइजेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा. अब यहां हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो योर कांस्टेंट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट काई इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant. Now chi is equals to polarization vector divided by epsilon naught into E vector. This chi is known as electric susceptibility.
Now, what is electric susceptibility? It is defined as the ratio of polarization vector to epsilon naught times the external applied electric field. सिंपल ये क्या है, रेशो है, डिवाइड है, पोलराइजेशन वेक्टर को अगर आप डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जितनी आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है सब्सटेंस को। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? Since we know that the general formula of capacitance is, we know that Q is equals to very charming, then C is equals to Q upon V. अब हम कैपेसिटेंस के रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस रीड करेंगे एंड देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। Now the next topic is show that capacitance increases when a dielectric slab is placed inside it. This is the most important question and this question carries 3 marks. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको ड्राइव करने पे हेल्प ड्राइव कीजिएगा और एक दो बार इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अपनी रफ नोटबुक पे। अब फर्स्टली हमें बताना है कैपेसिटेंस बढ़ रही है जब उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर ली। फर्स्टली व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब? डाइलेक्ट्रिक स्लैब मींस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, डाई मींस थ्रू, इलेक्ट्रिक मींस टू पास इलेक्ट्रिसिटी और टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है लेकिन वो सब्सटेंस खुद कंडक्टिंग नहीं बनते। For example, your glass, that is your glass slab glass and plastic extra. डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें से करंट तो पास हो जाएगी लेकिन वो खुद कंडक्टिंग नहीं बनेंगे। अब हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स ले ली। ये पैरेलल प्लेट्स हैं जिसपे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और प्लेट पे दूसरा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू नो मूव फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने नाम दिया है E नॉट। एक प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरे प्लेट पे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। नाउ सॉल्यूशन। अब मान के चलते हैं कि पहले ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है अभी इसके अंदर इंसर्ट नहीं है। जब ये इंसर्ट नहीं होगा तब आपकी इनिशियल व्हेन there is no dielectric in between the parallel plates। जब पैरेलल प्लेट्स में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कहां से आया, ये ऑलरेडी हमने ड्राइव किया है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां से हमने डायरेक्टली फॉर्मूला ले लिया। व्हाट इज ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट, लेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज अ कांस्टेंट दैट इज द परमिटिविटी। व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डी। दिस इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। अब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर लिया। अब जो ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट की है, द स्लैब हैज थिकनेस स्मॉल टी। स्लैब की अपनी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है। अब स्लैब जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस की, अभी मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ऐसी स्लैब है जो खुद कंडक्टिंग नहीं बनती बट अपने में से करंट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती। अगर वो पास होने देती है तो दिस मीन्स इस स्लैब के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइज्ड हो जाएगी आपकी स्लैब। जब पोलराइज्ड हो गई और मैंने लास्ट को इसको क्या कर दिया, अर्थिंग। अगर आपकी ये स्लैब पोलराइज्ड होगी, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव एंड पे, बट वो ई नॉट तो नहीं है, उनको मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन।
अब आप एक मान के चलिए, आपकी यही एग्जाम्पल है, ये आपकी एक कॉपी है, इसके आसपास प्लेट्स लगी है, वन प्लेट इज दिस वन एंड दिस इज द अनदर प्लेट। ये जो प्लेट है दिस एक्ट्स एज दिस वन एंड दिस प्लेट इज दिस वन, और ये जो डायरी है ये इसके बीच की बात मैं बता रही हूँ। अगर एक प्लेट इधर एग्जिस्ट कर रही है, एक प्लेट इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ये डायरी नहीं भी थी तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही थी जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, इस डायरेक्शन में। बट जैसे ही आपकी डायरी मीन्स दिस एक्ट्स एज योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपके स्लैब का काम कर रही है, तो स्लैब में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में, दिस वन। तो स्लैब के अंदर दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड्स मूव कर रही है, एक इस डायरेक्शन में दैट इज ई नॉट, और एक इस डायरेक्शन में दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दैट इज ईपी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है दैट इज ई नॉट, दूसरी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है दैट इज ईपी। ये तो ई नॉट तो पूरे आपके पैरेलल प्लेट्स के इनसाइड है, ईपी बस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में मूव कर रही है, तो ई नॉट भी तो इसमें मूव कर रही थी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो सो दे सिंपली सबट्रैक्टेड, हमें उसे सबट्रैक्ट करना है। किसमें से किसको सबट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम हायर टर्म टू लोअर टर्म। So it comes out to be net electric field inside the slab is equals to E naught minus EP. माइनस करके इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें मिलेगा। अब मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है तो मैंने लिख दिया ई रिड्यूस्ड। ई रिड्यूस्ड मीन्स जो आपको रिड्यूस्ड वैल्यू मिलेगी। नाउ इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द टॉपिक। नाउ द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ द न्यू capacitance of parallel plate capacitor when dielectric slab of thickness T is inserted is, अब हमें तो नहीं पता न्यू फॉर्मूला क्या आएगा तो हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, C डैश इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. This is your equation second. That is the general formula. Q is equals to CV. What is C dash? The new capacitance. What is C dash? This is new capacitance. Q is the total charge. What is V? That is your potential. अब हम इसी की वैल्यू डिराइव करेंगे. Since we know that sigma is equals to Q upon A, which implies Q is equals to sigma A. हमें पता चल गया Q की वैल्यू sigma A है. And E is equals to and V, sorry, therefore equation second becomes C dash is equals to sigma A upon V. This is your equation third. And we know that जनरल फॉर्मूला हमें पता है व्हाट इज ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यूजिंग स्पेशल केस ऑफ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन जब हमने दो पैरेलल प्लेट्स रखी थी, उसका स्पेशल केस मैंने आपको बोला था, प्लीज उसे याद रखिएगा कि अगर प्लेट्स पे चार्ज डेंसिटी सेम नेचर की हो, सॉरी अपोजिट नेचर की हो और सेम मैग्नीट्यूड की हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट्स के इनसाइड लाई करती है एंड इट्स वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस वन? ई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम देखते हैं, दिस इज योर इक्वेशन ए and also we know that हमने ये भी पढ़ा है E is equals to V upon R, electric field is negative gradient of potential,
मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज अ नेगेटिव. व्हाट इज ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, किसके साथ, पोटेंशियल के साथ. और ये हमने डेरिवेशन ऑलरेडी इस यूनिट के स्टार्टिंग में की थी, तो मैं वहां से जनरल फॉर्मूला ले रही हूँ. अब हम इसी फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V डैश. न्यू पोटेंशियल क्या डेवलप हुआ जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंसर्ट कर ली. नाउ व्हाट इज V डैश. नाउ V डैश न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब बात करते हैं यहां की. पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू आर. वट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जितनी एग्जिस्ट करेगी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. अब हम बात करते हैं स्लैब के इस पोर्शन की, दिस वन जिसे मैंने डार्क किया है. इस पोर्शन में बात करें व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज T एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द E नेट. और E नेट की वैल्यू क्या है, E रिड्यूस्ड. इसे मैं लिख सकती हूँ E रिड्यूस्ड. अब ये तो सिर्फ इतने की बात है, ये पोर्शन तो बच गया. इस पोर्शन में अब डिस्टेंस कितना बचा. इफ दिस टोटल डिस्टेंस इज D, दिस इज T, then how much this one is left out, this is D minus T plus D minus T. मैंने प्लस इसलिए डाला क्योंकि मुझे पैरेलल प्लेट्स के अंदर पूरे का बताना है पोटेंशियल कितना है. इतने का निकाल लिया, अब इस पोर्शन का रह गया था तो ऐड किया. डिस्टेंस कितना रह गया, D minus T. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या लाई कर रही है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ E नॉट लाई कर रही है, दैट इज योर E नॉट. ओके, अब मैं यहां लिख रही हूं. इसके बाद मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं. सिंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, definition of dielectric constant. आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. व्हाट इज दैट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू E रिड्यूस्ड अपॉन E नॉट. डू यू रिमेंबर दैट. ये आप लास्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, दैट इज योर लेक्चर नंबर 12, उसका लास्ट जो टॉपिक था वो मैंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस बताई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. उनमें से ये एक डेफिनेशन है और उसमें मैंने इंसर्कल भी किया था. दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सम अदर टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट वीडियो. हम वहीं से लेके आ रहे हैं इसे. Now put this value in above equation. Therefore, the above equation becomes V dash is equals to E reduced की वैल्यू यहां से निकालेंगे. What is E reduced, E naught upon K, E naught upon K multiply by T plus E naught D minus T, E naught D minus T. V dash is equals to, what is the value of E naught using equation A, that is sigma upon epsilon naught K into T plus sigma upon epsilon naught D minus T. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन A. वेयर इज इक्वेशन A, दिस वन इज योर इक्वेशन A. नाउ सिंस वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज Q upon A, or no need to write over here, that is V dash is this one. कॉमन निकाल लेते हैं. V dash is equals to sigma upon epsilon naught, दोनों से कॉमन, that is T upon K plus D minus T. Now put this value in equation number 3rd. Note down this one. Put V dash in equation 3rd.
Shall I rub this? What is your equation third? That is C dash is equals to sigma A by V dash, which is equals to sigma A upon, what is V dash? Sigma by epsilon naught, ब्रैकेट के अंदर T upon K plus D minus T. This is the term. Sigma and sigma get cancel out. New C dash is equals to A epsilon naught. This epsilon naught comes in the numerator part upon T upon T upon K plus D minus T. Now this is equals to A epsilon naught divided by T upon K plus D minus T, which is equals to C dash is equals to A epsilon naught divided by D minus T plus T by K. There is no change. अगर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नंबर्स आगे पीछे करके लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा. Which is equals to A epsilon naught upon D minus T is common, then 1 minus 1 upon K. This is your equation number B. From equation first and B, we know that C dash is greater than C naught. अब हम इक्वेशन 1 की तरफ जाते हैं. What is the numerator part? A epsilon naught. B इक्वेशन में जाए. What is the numerator part? Again A epsilon naught. Numerator is the same, so there is no change in the numerator. अब डिनोमिनेटर में देखते हैं. In equation first the denominator is D. In equation B the denominator is D minus something. So this means आपके B equation का जो denominator है, it has lower value as compared to the equation first. और आपको मैथमेटिकली पता है जिस नंबर की जिस इक्वेशन के डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो ओवरऑल टर्म लार्ज होती है. सो दिस इक्वेशन बी सी डैश इज बिगर देन सी नॉट. व्हाट इज सी डैश? द न्यू कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. ये नई कैपेसिटेंस थी जब आपने डाइलेक्ट्रिक उसके इंसर्ट किया था. एंड व्हाट इज सी नॉट? आपकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट द when there is no dielectric slab, जब वहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं था. तो हमने देख लिया क्वेश्चन यही था. प्रूव करना था कैपेसिटेंस बढ़ रही है जब उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं. तो हमने प्रूव कर लिया जब डाइलेक्ट्रिक डाला है तो कैपेसिटेंस बढ़ी हुई आती है, इंक्रीज्ड वन आती है एज कंपेयर टू द योर ओरिजिनल कैपेसिटेंस. अब इसी का हम एक स्पेशल केस करेंगे. व्हाट इज द स्पेशल केस? स्पेशल केस में आप लेट कर लें. लेट D इज इक्वल्स टू T. दिस मीन्स जो थिकनेस है आपकी स्लैब की वो इक्वल्स टू है किसके बराबर? द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. अब हम T की जगह भी क्या पुट कर लेंगे? D. देयरफॉर इक्वेशन B becomes, your equation B becomes C dash is equals to A epsilon naught divided by D minus D into 1 minus 1 upon K. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही D और D कैंसिल कर देते हैं. नो, फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला बॉड मास. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर आगे इक्वेशन में कैंसिल करेंगे. A epsilon naught upon D minus D plus D by K. Now you cancel this D and D. अब जब हम इन दोनों D को कैंसिल कर लिया, इसके बाद then C dash is equals to A epsilon naught divided by D by K. This is the new formula. C dash is equals to K times A epsilon naught upon T. This is your equation C. Again from equation first and C, again from equation first and C we concluded that C dash is again greater than C naught. अगर हम मान ले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के बराबर हो तब भी आपकी कैपेसिटेंस बड़ी आती है ओरिजिनल कैपेसिटेंस से. क्यों? नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट व्हाट इज द कैपेसिटेंस? A epsilon naught upon D.
And in equation C, the new capacitance is A epsilon naught T multiplied by some term. If a number is multiplied by some number, the number get increased. So the equation C is increased one K times as compared to equation 1. So again the capacitance increases when a dielectric slab is placed inside it. Now the next topic is, now student, the next topic is show that the capacitance increases when a conducting slab is placed inside it. Now we discuss about this topic in the next video. Now your home task is do examples, that is 1.1 to 1.13 and exercise 1.1 to 1.34 from NCERT in your notebook. That is your chapter number 1. Now second, your home task is do examples, that is from 2.1 to 2.10 and exercise 2.1 to 2.37 from NCERT in your notebook, and this belongs to your second chapter, that is your electric potential and capacitance. Thank you.